Hello, dear students. You are most welcome here on your YouTube channel Star Coaching Star. And in previous video, you have already covered the topic of mirror and types of mirror. In this part of video, we will cover the topic terminology related with mirrors. Actually, some terminology which are related from mirror. And first one is curvature of center. First one is curvature of center. Curvature of center. What is curvature of center? And curvature of center is that actually mirror is a part of holosphere. It is holosphere, and mirror is a part of holosphere. If we cut this part now and polish of metal, then this is called mirror. But mirror is a part of this holosphere. The center point of this holosphere is called center of curvature for any mirrors. हमारा पहला टॉपिक सेंटर ऑफ कर्वेचर. देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है. एक्चुअली मिरर किसी भी होलोस्फेयर का एक पार्ट होता है. जिस होलोस्फेयर का मिरर एक पार्ट है, उस होलोस्फेयर में सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंट बाय सी. नाउ वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर. The center point of the holosphere, the center point of the holosphere from which any mirror is a part is called curvature of center. Curvature of center. फिर समझिए दोबारा. देखिए हमारा ये जो मिरर बेटा, ये एक पार्ट है. किसका पार्ट है? एक होलोस्फेयर का एक पार्ट है. इस होलोस्फेयर के इस पार्ट को यदि हम कट कर दें, इस पार्ट को अगर हम कट कर दें और इस पर किसी भी मेटल की पॉलिश कर दें, तो यही पार्ट हमारा बन जाता है मिरर. बट इस स्फेरिकल मिरर का कोई ना कोई तो सेंटर होगा. उस सेंटर को हम कर्वेचर ऑफ सेंटर कहते हैं. बट ये जो होलोस्फेयर, इस होलोस्फेयर के सेंटर पॉइंट को ही इस स्फेरिकल मिरर का कर्वेचर ऑफ सेंटर कहते हैं. डेफिनेशन में देखिए, द सेंटर ऑफ द होलोस्फेयर, सेंटर ऑफ होलोस्फेयर फ्रॉम विच, जहां से एनी मिरर इज ए पार्ट, जिसका कोई भी मिरर एक पार्ट होता है, उस सेंटर पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? कर्वेचर ऑफ सेंटर. एंड इट इज represented by C. So that is the first topic or first terminology which is related from mirror. Now we will study second terminology which is related from the mirror, and it is fall. Second, fall. We know this is spherical mirror and it is reflecting surface of this mirror. The midpoint of reflecting surface,
ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका मिड पॉइंट, इट इज कॉल्ड पोल एंड रिप्रेजेंट बाय P. I mean the midpoint of reflecting surface of any mirror is called pole. इसे लिख लेते हैं. The midpoint of reflecting surface, the midpoint of reflecting surface is called, the midpoint of reflecting surface is called pole, and it is represented by P. आप इसकी शॉर्ट ले सकते हैं इस डेफिनेशन की. पोल, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, इसका मिड पॉइंट ही हमारा क्या कहलाता है? पोल. नाउ थर्ड टर्मिनोलॉजी विच इज रिलेटेड ऑफ mirror. Third one is radius of curvature, and third one is radius of curvature. Radius of curvature. Radius of curvature. Radius of curvature, distance from center of curvature to the pole. Distance from center of curvature, the center of curvature है, to the pole. Center of curvature से pole तक की जो distance होती है उसी हम क्या कहते हैं बेटा? Radius of curvature, and it is represented by small r. कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं. डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल is called radius of curvature. And generally it's represented by R. Now next terminology which is related from mirror, and that is number 4. Fourth number, and it is principal axis. Principal axis. Principal axis is that it is an imaginary straight line. ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो फॉलो करते हैं स्ट्रेट पाथ को, बट इट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये कहाँ से गुजरती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एंड पोल, और पोल से. ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है. आई मीन ये पोल है बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. अब इन दोनों पॉइंट से होकर जो इमेजिनरी लाइन है, स्ट्रेट लाइन जाएगी, ये लाइन जा रही है, और कहाँ तक? इनफिनाइट डिस्टेंस तक. ये जो इनफिनाइट डिस्टेंस तक जा रही है, यही हमारा बेटा क्या रहेगा? प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ वी राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस. इट इज एन इमेजिनरी लाइन. इट इज an
imaginary straight line, imaginary straight line which it is an imaginary line which passing through the center of curvature and pole, which passing through center of curvature which passing through center of curvature and pole. It is called principal axis. फिर समझिए principal axis क्या होता है. It is an imaginary line. सबसे पहली बात ये imaginary line होती है. Follow straight path. Straight path को follow करती है. Third one is its pass. ये पास होते जाती है, गुजरती है कहाँ से? टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है कहाँ तक? इनफिनाइट डिस्टेंस तक. तो ऐसी जो इमेजिनरी लाइन होती है, दैट इमेजिनरी लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी विच इज रिलेटेड ऑफ मिरर, एंड दैट इज प्रिंसिपल फोकस. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं. Next, number 5th, and that is principal focus. Important terminology है तो ध्यान से देखें. Now we will study about principal focus. Principal focus होता क्या है? देखिए, look here carefully. We know that it is an concave mirror. Is concave mirror, and it is convex mirror. In concave mirror, it is pole P. It is center of curvature C. It is principal axis. ये principal axis. तो भी क्या बेटा, प्रिंसिपल फोकस. देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या है? इट इज अ पॉइंट. एक ऐसा पॉइंट होता है ऑन प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस पर एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर, जहां से स्ट्रेट रे ऑफ लाइट, पैरेलल स्टेट ऑफ लाइट, जो पैरेलल रे ऑफ लाइट चलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, इट्स कन्वर्ज मीन्स होता है बेटा एक जगह इकट्ठा हो जाना. देखिए लाइन यहाँ पर इकट्ठा होगी, यहाँ पर इकट्ठा होगी, ऐसे इस टाइप से. अब जनरली आपको प्रिंसिपल फोकस समझ में आएगा. यही पॉइंट हमारा बेटा, ये पॉइंट हमारा कहलाता है प्रिंसिपल फोकस. एक्चुअली प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट
प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट होता है लोकेटेड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, विच इज लोकेटेड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर लोकेटेड होता है। ऑन विच, जिस पर पैरेलल रे ऑफ लाइट कन्वर्ज, पैरेलल रे ऑफ लाइट, जो पैरेलल रे ऑफ लाइट होती है वो कन्वर्ज होती है, कन्वर्ज मीन्स इकट्ठा होती है, कब? आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ये कन्वर्ज होती है, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, उसी पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। एक्चुअली कन्वर्ज होती है कॉनकेव मिरर में, ये फिनोमिना हो रहा है कॉनकेव मिरर में, इसीलिए कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम भी है और उसी को हम कहते हैं बेटा कन्वर्ज मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। इसी मिरर को हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। वाई, क्यों? इट कन्वर्ज ऑल रे ऑफ लाइट एट ए पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर जितनी भी रे ऑफ लाइट है उसे कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम सेकेंडली कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। तो फिर समझिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट होता है विच इज लोकेटेड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी लोकेटेड हो सकता है, बट ऑन विच, जिस पर पैरेलल रे ऑफ लाइट, जो पैरेलल रे ऑफ लाइट होती है कन्वर्ज होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। अब ये तो फिनोमेना हुआ है कॉनकेव मिरर में, बात आती है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा समझिए, देखिए कॉन्वेक्स मिरर में ये पॉल है, यहां पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये सब प्रिंसिपल एक्सिस है इनफिनाइट डिस्टेंस तक। एक्चुअली कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसमें इनर पार्ट पर किसी भी मेटल की पॉलिश होती है और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो हमारा ये जो मिरर है ये भी कॉनकेव मिरर जैसा ही है, क्योंकि कॉनकेव मिरर की क्या क्वालिटी है, क्या प्रॉपर्टी है? कॉनकेव मिरर ऑन विच पॉलिश ऑफ मेटल अप्लाई ऑन आउटर सरफेस, जब हम आउटर सरफेस पर किसी भी मेटल की पॉलिश को अप्लाई करते हैं, एंड इनर सरफेस इज नॉन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, वही हमारा कॉनकेव मिरर होता है। सेम यहाँ पर भी यही है, आउटर सरफेस पर मेटल की पॉलिश है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है। अब हमें कन्वेक्स मिरर समझना है, तो कन्वेक्स मिरर में क्या करेंगे, इनर पार्ट पर, इनर सरफेस पर हम किसी भी मेटल की पॉलिश अप्लाई करेंगे। अब ये हमारा बन गया बेटा कन्वेक्स मिरर, और ये जो आउटर सरफेस है ये हमारी कहलाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। Outer surface is reflecting surface, inner surface on which we apply the polish of metal and it is known as non-reflecting surface, यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। अब देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। आफ्टर स्ट्राइक ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट स्ट्राइक्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करेंगी तो यहां पर फिनोमेना होगा रिफ्लेक्शन का। अब यहां से फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होगा बेटा, ये कोई भी एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, इसी को हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। इस पॉइंट से ये रे ऑफ लाइट डाइवर्ज होंगी, डाइवर्ज मीन्स फैलती हुई जाएंगी, सेम एज इट इज, इस टाइप से। यानी एक ही पॉइंट है जहां से रे ऑफ लाइट
डाइवर्ज हो रही हैं, आई मीन्स ये फैल रही हैं, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। वाई, क्यों? कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज, ये डाइवर्ज करता है रे ऑफ लाइट्स को, और जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती है उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारा बेटा प्रिंसिपल फोकस है। इस समझिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट होता है विच इज लोकेटेड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर लोकेट होता है, ऑन विच, जिस पर पैरेलल रे ऑफ लाइट कन्वर्जिंग, या तो कन्वर्ज होती है, और डाइवर्जिंग या फिर डाइवर्ज होती है, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट। ये डायग्राम आप ड्रॉ करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन कुछ इस टाइप से होगी। ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऐसा पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस पर वेयर, जहां से पैरेलल रे ऑफ लाइट converge or diverge, that point is known as principal focus. That point is known as principal focus, and it is denoted by F. It is represented by F. तो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस बहुत ही मेन टर्मिनोलॉजी है ऑफ विद इज रिलेटेड फ्रॉम मिरर, जो मिरर से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज नंबर 6। ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। एंड टॉपिक इज अ फोकल लेंथ। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस terminology, it is focal length. Actually focal length is the distance from principal focus to the pole. वो डिस्टेंस प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस, इट इज पोल, distance between them is known as focal length, and it is denoted by small f. So we can write here the definition of focal length, and it is the distance from principal focus, the distance from principal focus to the pole is called focal length, and it's represented by small f. Now all terminology with which are related from mirrors we have already covered in this part. Now we will meet in next video with the next topic. Thank you for watching.